جتنا ہم پڑھے ہیں ان کے سوالات بنا کر کے دوں گا۔ میں نے ویسے ایڈمن جو ہیں فاطمہ بہن، تو ان کو میں نے بھیج دیا تھا، امید کہ آپ تک سوالات پہنچ گئے ہوں گے۔ میں کمنٹ میں ایک بار سوالات نہیں، کمنٹ میں سارے سوالات نہیں آ رہے ہیں، البتہ جہاں پر بھی سوالات موجود ہیں آپ وہاں پر دیکھیں، میں ایک بار سوالات کو پڑھ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی بہن کو سوالات نہ سمجھ میں آئے ہوں، یا کسی بھی سوال کے تعلق سے کوئی چیز پوچھنی ہو، یا کسی طرح کی کوئی چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو، تو آپ پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا۔ ہاں تو ایک منٹ، سوالات آپ تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے آپ لوگوں تک؟ جی استاد میں نے بھیج دیے ہیں۔ جی اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ بارک اللہ فیک۔ آ، دیکھیے آپ لوگ، دیکھیے سوالات گروپ میں آپ کے بھیج دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سیرت کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام اور اس کے مصنف کا نام لکھو۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام لکھنا ہے کہ کتاب کا کیا نام ہے، اور ایسے اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں ان کا نام آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا سوال میرے خیال سے بہت واضح ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے۔ ہاں یہ اسکرین پہ آ گیا سوال، تو سوال نمبر 2 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ذکر کرو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے اس کو ذکر کرو۔ جتنا نسب نامہ کتاب میں یعنی مہر نبوت کے اندر دیا ہوا ہے اتنا ہی ذکر کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ کسی دوسری کتاب سے سوالوں کے جوابات آپ کو حل نہیں کرنے ہیں، بلکہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اسی کتاب سے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ کا نام کیا تھا اور ان کی وفات کب ہوئی؟ اس میں تھوڑا سا مسٹیک ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا اور ان دونوں کی وفات کب ہوئی، یعنی آپ کے والد اور والدہ کی وفات کب ہوئی؟ میں اس کو ایڈٹ کر کے صحیح کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور پانچواں سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دادا کا کیا نام تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دادا کا نام آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر کے بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام بتائیں، اور نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے حضرت خدیجہ سے جب نکاح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ پھر اس کے بعد میں دوسرا جو چیپٹر ہے ہمارا نبوت کا، کتنے سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا؟ نمبر 2 سوال ہے، خالی جگہوں کو پر کرو، یعنی جو خالی جگہیں ہیں اس کو پر کرنا ہے۔ جیسے الف ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اب یہاں پہ جو سب سے پہلے ایمان عورتوں میں لائی ہیں ان کا نام آپ کو لکھنا ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہاں پہ نام لکھنا ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو نام لکھنا ہے، کتاب میں موجود ہیں ساری چیزیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور ہدایت سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تو نام موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ کتنے سال تک آپ نے چپکے چپکے دعوت دی اور اعلانیہ دعوت کا آغاز کب کیا؟ یعنی کتنے سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری چھپ کے اور اسی طرح چپکے چپکے سری طور پر اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد میں کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر یعنی ظاہر کر کے کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا؟ پھر دوسرا چیپٹر ہمارا ہے مسلمانوں کا وطن چھوڑنا۔
इसके तहत पहला सवाल आपके लिए लिखा गया है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले किसने अल्लाह की राह में अपने घर बार को छोड़ा। सवाल नंबर दो, हबशा की तरफ कितने मर्द और कितनी औरतों ने हिजरत की। यहाँ पे तादाद लिखनी है मर्दों और औरतों की। सवाल नंबर तीन, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु किसके सगे भाई थे। तो ये आप जिनके भाई थे उनका नाम लिखना है। सवाल नंबर चार, हजरत हमजा और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस्लाम किस सन में कबूल किया। ये मीम छोटा हुआ है यहाँ पे, इंशाल्लाह मैं उसको सही कर दूंगा। और उन दोनों के इस्लाम लाने यानी हजरत हमजा और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ। सवाल नंबर पाँच, सन पाँच नबूवत में कौन सा वाकया पेश आया, उस पर मुख्तसर नोट लिखो। जो वाकया पेश आया है आप इसको सन पाँच नबूवत वाले सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा। तो उससे मुतालिक एक मुख्तसर नोट लिखना है जिससे पता चले कि सन पाँच नबूवत के अंदर ये हादसा ये वाकया पेश आया था। सवाल नंबर छः, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन में ताइफ दावत व तबलीग के लिए तशरीफ ले गए और आपके हमराह कौन थे। हमराह का मतलब साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन गए थे। सवाल नंबर सात, ताइफ वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया, आपकी बातों को कबूल किया या नहीं कबूल किया, वो बातें आपको लिखनी है। सवाल नंबर आठ, किस सन में आपने मदीना मुनव्वरा के पहले काफिला, कफला लिखा है, अलिफ छूट गया यहाँ पर, काफिला से मुलाकात की और उस काफिले में कितने लोग थे। सवाल नंबर नौ, मेराज का वाकया कब पेश आया। सवाल नंबर दस, पंज वक्ता, पंज वक्ता, पंज ये फारसी लफ्ज है, माना होता है पांच के। पंज वक्ता नमाजों की फर्जियत कब हुई और इससे पहले मुसलमान कितने वक्त की नमाज अदा करते थे। तो ये लिखना है आपको। सवाल नंबर 11 और आखिरी सवाल जो है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा दाई बनाकर भेजा और उनकी कोशिश से मदीना के किन किन कबीलों ने इस्लाम कबूल किया। तो वो नाम लिखना है जिस सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने से पहले भेजा था और इसी तरह से उनकी कोशिश से मदीना के किन किन कबीलों ने इस्लाम कबूल किया था। फिर वही चीज़ें रोमन में यही सवालात हैं। और अगर किसी बहन को किसी सवाल में कोई डाउट हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो वो बहन पूछ सकती हैं। जो सवालात भेजे गए हैं उसके जवाबात पीर तक आपको लिखने हैं। 3 दिन 4 दिन का टाइम है आपके पास, आसानी के साथ लिख सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी को किसी सवाल के बारे में डाउट हो या कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकती हैं। जो चीज़ें एडिट करने की है इंशाल्लाह मैं उसको देख करके फिर से एडिट करके और करेक्शन करके इंशाल्लाह फिर से भेज दूंगा तो आप तक वो सवालात पहुंच जाएंगे। किसी बहन का कोई सवाल है तो पूछ सकती हैं। सिस्टर थोड़ी देर रुकिए हाँ, उस्ताद थोड़ी देर रुकिए। जी जी। उस्ताद, उस्ताद मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें मतलब ना उर्दू में लिखना है रोमन में। हाँ, शायद आप ये आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है लेकिन मुझे जहाँ तक बात समझ में आई है वो ये कि आप ये पूछना चाहती हैं कि सवालों के जवाबात जो है उर्दू में लिखने हैं या रोमन में भी लिख सकते हैं। तो सवालात उर्दू में माइक। हेलो। हाँ ना दोनों में लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं।
जी आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। आप माइक बंद कीजिए इसलिए कि आवाज बहुत आ रही है, तो बात समझ में नहीं आ रही है और बहनों को। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपका सवाल है कि उर्दू में लिखना है या रोमन में लिखना है। आपको जिसमें आसानी हो या जो जबान आती हो। अगर आपको उर्दू आती है तो अच्छी बात है, आप उर्दू ही में लिखें। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो इस सूरत में आप रोमन में भी लिख सकती हैं। इसी वजह से मैंने सवालात जो है वो रोमन में भी बनाए हैं। आपको बात समझ में आ गई? जी उस्ताद। जी अच्छी बात है। और किसी बहन को कोई डाउट है? कोई बहन को अगर डाउट है तो वो हैंड रेज करें। उस्ताद हमें सारे आंसर्स और क्वेश्चंस याद भी करने हैं। जी बिल्कुल। छोटे छोटे सवालात हैं। आप लिखेंगे तो आधा आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खुद से लिखेंगे तो आधा से ज्यादा सवालों के जवाब खुद याद हो जाएंगे। छोटे छोटे सवालात हैं। एक दो तीन चार पांच वर्ड या एक जुमला, दो जुमला, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस पर मुश्तमिल जवाबात हैं। छोटे छोटे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हम ऐसा भी जी करेंगे उस्ताद। इंशाल्लाह कि आपको मौका देंगे कि आप एक दो दिन के अंदर याद करके आएं। और फिर एक दिन हम सारे सवालात के जवाबात पूछेंगे आप लोगों से। तो जो बहनें जवाब देंगी, तो इससे क्या है, सुनने से भी याद होता है और लिखने से भी याद होता है। तो इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। आप बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें। आप लिखें एक बार, देखिए आपको कितना याद होता है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 50 से 60% जवाबात आपको याद हो जाएंगे। जी उस्ताद, और हदीस में हमें दो हदीसें याद करनी है पूरी। मैं एक हदीस याद करनी है अगले हफ्ते, जो हदीस हम मुकम्मल कर चुके हैं। अभी दूसरी हदीस जो है वो हम मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा बाकी है एक पेज। तो वो हदीस आपको अगले हफ्ते याद करनी है इंशाल्लाह। हम बताएंगे इंशाल्लाह उसको जब याद करनी होगी तो। दूसरी चीज ये है कि दूसरी हदीस इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम आप लोगों पे ज्यादा हो गया है। हदीस भी याद करनी है और दोनों के सवालात भी क्या है, आपको लिखने हैं। तो आपकी आसानी के लिए वो हदीस दूसरी याद नहीं करनी है। अगले हफ्ते हम इसको होमवर्क में रखेंगे। और पहली अस्सलाम हदीस वालेकुम। आप याद करें। अल्लाह आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। फिर हमको ये पूछना था, ये हम नोट सबमिट करना रहेगा या अपना पढ़ने के लिए हमको लिखना है, मीन्स अपना नोट्स बनाना है या होमवर्क जैसा सबमिट करना रहेगा? इसके बारे में फातिमा बहन बताएंगी कि क्या रूल है। मैं भी पहली मर्तबा इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो और असातिज़ा कैसे करते हैं सवालात वगैरह का? उस्ताद तो ऐसे जो अदा बताएं के तो उस्ताद देते हैं होमवर्क, तो उनको पर्सनल सेंड करना होता है। अच्छा। और उस्तादा सुजूद भी जो अपना ऑडियो लेती है सूरह नास और सूरह फलक का, तो उन्होंने पर्सनल पे ही ऑडियो मंगवाए थे। तो इन सवालों के जवाबात आप लोग मुझे ग्रुप में तो मेरा नंबर होगा। जी। हाँ, तो आप लोग भेज सकते हैं हमें और हम करेक्शन करके आपको दे देंगे। जी उस्ताद, मैं आपको नंबर भेज। आप एक बार मेरा नंबर चाहे डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि बहनें जी हमें जवाबात लिख करके भेज सकें और एक बार मतलब सबके सवालात हम देख करके करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह। जी जी उस्ताद, मैं डाल दूंगी। और हदीस के सवालों के जवाब और ये सीरत के सवालों के जवाब मंडे तक देने हैं। हाँ, मंडे तक अगर मतलब कोई मुश्किल है तो एक आध दिन हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है उस्ताद। ये मैं सादिया सिस्टर को अनम्यूट कर देती हूँ। जी। मैं सादिया सिस्टर को अनम्यूट कर देती हूँ, उनको सवाल पूछना है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम।
वसलाम जी। या हदीस के भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, जैसे सीरत के है? हाँ, हदीस के हद, क्वेश्चन आपके उसमें जो मुज़क्करा है, किताब जो है आपको दिया गया है, नोट्स, उसी नोट्स में जी, सवालात मौजूद हैं। उतने ही सवाल रहेंगे हदीस के? जी, उतने ही रहेंगे। और कल किसी बहन ने यही सवाल किया था, तो हम उसका जवाब यही दिए थे कि एक तो हदीस याद करनी है, वो भी एक मुस्तकिल सवाल हो गया। जी जैसे हदीस याद करनी है तो मिसाल के तौर पे आपको कह दिया गया कि ये हदीस लिखो या ये हदीस जी सुनाओ, तो ये भी एक मुस्तकिल सवाल हो गया। इसके अलावा हमने ये कहा है कि आप पूरे नोट्स को पढ़ेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि इम्तिहान में हम सवालात बनाए तो उसमें से ऑप्शनल या सही और गलत का निशान लगाने का दे सकते हैं। आप पढ़े रहेंगे तो बआसानी हल कर लेंगे, उसका मसला नहीं होगा। एकदम आम, बस यही चेक करने के लिए कि आपने समझा है और पढ़ा है कि नहीं। जी रिटर्न जी। में नहीं आएगा कि तफसील से आपको डिटेल में उसका जवाब देना हो। अगर इस तरह का मेन आ तो जी, हाँ, नहीं बोलिए बोलिए आप। जी बोलिए। समझ गए आप? जी जी, समझ गए समझ गए। जी, जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह। जजाकल्ला खैर। आमीन हुई आप। फरीन सिस्टर, अनम्यूट करें। जो सवाल जवाब हमारे दिए हैं वो हमें किताब में एग्जाम देना। मुझे समझ में नहीं आया बहन का सवाल। वो पूछ रही हैं सवालों का जवाब किताब में ही है ना। जी, सारे सवालात किताब से बनाए गए हैं और सारे सवालात के जवाबात किताब ही से हल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सर ये हदीस की बुक का नाम क्या है सर, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बुक लेना चाहते पर नाम क्या है ये तो नहीं पता। वो जो पीडीएफ में शो हो रहा है वो तो इस बुक नहीं। किताब का, ये जो किताब हम सीरत में पढ़ते हैं, जी सर, नहीं सर, सीरत नहीं, हदीस की किताब। तो हदीस की किताब जो ये नोट्स है, ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका कि नाम हो। ये बाजाब्ता कोई किताब नहीं है, बल्कि एक नोट तैयार किया गया है छोटे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो अभी शुरू करने बेसिक तौर पर हदीस पढ़ना। तो ये नोट्स है, किताब की शक्ल नहीं है ये। जी सर ठीक है, बस यही पूछना था। और सीरत वाली किताब के ऊपर तो नाम लिखा है, आपको पता होगा। हाँ वो लिखा है। जी। एक ये फर्स्ट सेमेस्टर कितने महीने का रहेगा? अ, इस चीज का तो मुझे इल्म नहीं है। आप उसमें क्या नाम है, जो ग्रुप है, ग्रुप में पूछ सकती हैं, या फातिमा बहन आपको जवाब देंगी। मुझे इसका इल्म नहीं कि कितने दिन का है। उस्ताद 3 से 4 महीने का है। एक सेमेस्टर। जी, मोशरफी 3 से 4 महीने का एक सेमेस्टर है। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ उस्ताद, एक बहन ने सवाल मेरे को भेजे हैं कि जी, जो हदीस, जो पहली हदीस है, हमको बस वो मेन हदीस याद करनी है, या जो बीच में हदीस या उसके साथ जो और याद करने को दिया है वो सब भी हाँ याद करना है। हाँ, समझ गया मैं। ये जो हदीस, पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये वाली हदीस याद करनी है। उसके अलावा जो दलील के तौर पर या एक्सप्लेनेशन के तौर पर दलीलें आई हैं, हदीसें और कुरान की आयतें आई हैं, उनको बेज़ब्त तौर पर याद करना ज़रूरी नहीं है। असल जो मकसद है वो आपको हिफ्ज़ हदीस के तौर पर पहली हदीस जो लिखी हुई है वही याद करनी है। जी शुक्रिया उस्ताद। अलबत्ता जैसे आगे चीजें आएंगी तो बताऊंगा मैं, इंशाल्लाह मसला नहीं है। अभी यही चीज समझ के रखें। जी उस्ताद ठीक है।